تعلیم پر زور، تعلیمی نظام پر توجہ ضروری۔ فیصل کے 387 ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولوں میں 17 سے 20 اسکیل کے سکول ہیڈز کی سیٹیں خالی۔ سکولوں میں انتظامی اور مالی معاملات متاثر ہونے لگے۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے مالی معاملات چلانے کے لیے عارضی ہیڈز کو اختیارات سونپ دیے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، پچھلے 5 سال میں محکمہ تعلیم میں بھرتیاں نہ ہونے کے بعد جہاں اساتذہ کی سیٹیں خالی ہیں، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں سکولز ایسے ہیں جو کہ سربراہان ادارہ سے محروم ہے۔ اس حوالے سے فیصل آباد کی بات کی جائے تو 357 سکول جو ہیں وہ مستقل ہیڈ سے محروم ہیں، جس پر عارضی طور پر معاملات چلانے کے لیے سی او ایجوکیشن کی طرف سے ان تمام میں سینئر اساتذہ کو ہیڈ کی ذمہ داری سونپتے ہوئے ان کو ڈی ڈی او پاورز دے دی گئی ہیں تاکہ وہ مالی طور پر جو معاملات ہیں ان کو چلا سکیں۔ اس حوالے سے سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب بتائیے گا کہ پچھلے 5 سال میں بھرتی نہیں ہو سکی، ہمارے 357 سکول جو ہے بغیر ہیڈ کے چل رہے ہیں۔ اب عارضی طور پر جو آپ کی طرف سے ڈی ڈی او پاورز دی گئی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کیوں حکومت اتنا ڈیلے کرتی ہے، اور سربراہ ادارہ اگر مستقل نہیں ہوگا تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عارضی طور پر یہ جو ارینجمنٹ کیا گیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ڈی ڈی او پاس کے بغیر ادارہ جو مالی معاملات کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اس لیے عارضی طور پر ہم ان کو ڈی ڈی او پاورز دی ہیں تاکہ یہ اپنے مالی معاملات کو چلا سکیں۔ گاہے بگاہے گورنمنٹ سے بھی اور میٹنگز میں بھی یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ریکروٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ریگولر سیٹیں ہیں ہیڈس کی وہ خالی ہیں، تو ان کو جلد سے جلد فل کیا جائے یا زیادہ سے زیادہ پروموشن دی جائے۔ اب لکیلی پروموشنز تو ہوئی ہیں، لیکن الیکشنز کی وجہ سے ابھی ان کی پوسٹنگ آرڈرز نہیں ہو سکے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہماری سیٹیں جو ہے نا وہ کور ہو جائیں گی۔ جی بالکل، محکمہ تعلیم کی طرف سے بھرتیاں تو نہیں ہوئی، لیکن کچھ اساتذہ کو پروموٹ کر کے ریگولر ہیڈ جو ہے وہ جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جمع دینے والی سردی مگر کوئی جائے پناہ نہیں۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں امداد لینے والی خواتین خوار رجسٹریشن کے ساتھ رقم کی وصولی کے لیے بھی ڈیسک موجود، مگر خواتین لمبی لمبی قطاروں میں دھکے کھانے پر مجبور۔ وفاقی حکومت کے ریلیف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، خواتین پھٹ پڑی، 10 چکر لگوانے کا شکوہ کر دیا۔ خواتین نے 10 چکر لگوانے کا شکوہ کر دیا۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام امداد لینے والی خواتین خوار ہونے لگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کے دعوے جو ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ یہاں پر آنے والی خواتین جو ہیں وہ خوار ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، انہیں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور اس ٹھٹھتی سردی کے اندر جو ہے خواتین کو کئی گھنٹے انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے نہ صرف جوان خواتین بلکہ ضعیف خواتین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، جن کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی بھی سایہ دار جگہ موجود نہیں ہے ان کے لیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود بھی ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ کتنے گھنٹے جو ہے یہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے؟ صبح 8 بجے تو ہم نے سی 8 بجے تک بیٹھے، شام تک بیٹھے رہنے ہیں، تو کوئی گل بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، تو پھر آتے ہی نہیں، شام تک آتے ہیں ہم بیٹھ کے۔ بالکل، لارا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ بزرگ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں، اس قدر سردی ہے کہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے کہ کن مشکلات کا سامنا؟ اتنی زیادہ سردی ہے، آپ پیسے لینے آتے ہیں، صبح 5 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک آ جاتا ہے، مجھے پیسے نہیں ملتے، پتہ نہیں کیوں نہیں پیسے ملتے، وعدے کری جاتے ہیں ابھی آتے ہیں، مجھے پیسے نہیں ملتے، باہر بیٹھے ہیں پارک کے بیٹھے، اتنی سردی، اتنی زیادہ سردی ہے۔ بالکل اتنی زیادہ سردی، اور بھی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بتائیے گا کہ کن مشکلات کا سامنا؟ بہت مشکلات دا سامنا، رکشے نہیں لبھدے، انہاں وچ آنے ہیں، کرائے پہاڑے لا کے اتنے آ کے انہاں کتے باہر کتے اندر، کوئی کام نہیں بنے ہون ڈیا ہوا، 3-4 باری آئے ہیں اسی۔ بالکل کئی چکر جو ہے وہ لگائے ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ بیمار خواتین اس وقت موجود ہیں جن کو یہاں اینٹوں پہ بیٹھنا پڑا تھا۔ ہاں جی، بہت بیمار ہیں، پریشان ہویا ہے، نالی دوسری پخانے والی لگی ہے ساری، کل بھی آن کے بیگ کے تر گئے، کہندے بس ہون آئے کوئی بھی نہیں۔ اج بھی صبح 8 بجے آن کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں صحیح گل ہی نہیں دستے پے بھی ہون اسی آنے، اینی مجبوریاں، بل تارن والے ہوئے نے، کرایہ دین والا ہویا ہے، تے سانو صحیح گل ہی نہیں دستے پے۔ بالکل مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خواتین کا یہی کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے یہاں پر چکر لگانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر عملے کی جانب سے سنا نہیں جاتا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کیشیئر موجود نہیں ہے، تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سسٹم سلو ہے، تو کبھی اس بات کا جو ہے بہانہ کر دیا۔ مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ اپنی ٹریبیونل میں انتخابی امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت۔ این اے 108 سے صاحبزادہ محبوب سلطان نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی۔
जस्टिस असजद साबिक वफाकी वजीर की अपील पर समाअत करेंगे। साहिबजादा महबूब सुल्तान के खिलाफ FIR के बायस कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। साहिबजादा महबूब सुल्तान के खिलाफ FIR के बायस कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत। NA 108 से साहिबजादा महबूब सुल्तान ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की। जस्टिस असजद साबिक वफाकी वजीर की अपील पर समाअत करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाया गया अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसमें उम्मीदवारों की समाअत है वो जारी है। अपीलें की जा रही हैं उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आज जो है वो NA 108 से कागजात नामजदगी की मुस्तरदगी के खिलाफ साहिबजादा महबूब सुल्तान की अपील पर समाअत की जाएगी। समाअत जो है वो जस्टिस असजद जो है वो करेंगे। साहिबजादा महबूब सुल्तान के खिलाफ जो है FIR दर्ज होने की बिना पर रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो उसके कागजात नामजदगी थे उसको मुस्तरद किया गया था, जिसके खिलाफ वो साहिबजादा महबूब सुल्तान की जानिब से अपील दायर की थी। तो आज जो है वो जस्टिस असजद जो है वो समाअत करेंगे और उसके बाद जो अपनी फैसला दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो दीगर उम्मीदवार जिसमें जो है वो राष्ट्रीय याकूब हैं, मौलाना माविया आजम हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो कागजात नामजदगी की मुस्तरदी के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई हैं। जबकि इसी के साथ जो है वो अमीर अब्बास हैं वकील थे, उनकी जानिब से भी एक जो है वो अपील जो दायर की गई है, जिसमें साहिबजादा महबूब सुल्तान के 130 में कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ जो है वो अपीलेट कोर्ट जो है दरख्वास्त दायर की गई है। इस हवाले से तमाम से दरख्वास्तों का जो है ट्रिब्यूनल जो है वो समाअत के बाद अपना आखिरी फैसला जारी करेगा। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योड़ में रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्कीम जारी कर दी। जिला भर में कितने पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी, जिला चिन्योट में आम इंतखाबात के सिलसिले में जो पोलिंग स्कीम्स है वो जारी कर दी गई हैं। जिला में 2 कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं वहाँ पर 616 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, जिनकी आज जो इब्तदाई फहरिस्तें हैं वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने दफातर के बाहर अवेजा कर दी हैं। इन पोलिंग स्कीम्स के मुताबिक जिला में 115 मेल, 107 फीमेल, जबकि 394 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जिला में 1794 जो पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। कोई भी शहरी या उम्मीदवार 11 जनवरी तक इन पोलिंग स्कीम्स पर अपने जो एतराज़ात है वो दाखिल करवा सकते हैं। बेशतर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो सरकारी इमारतों में कायम किए जाएंगे। चंद एक मुकामात पर प्राइवेट जगहों पे पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। जिला में 8,84,579 वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और 13 जनवरी को जो उम्मीदवारों के जो सिंबल्स हैं उनकी कलेक्शन का। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में उम्मीदवारों और वोटर्स की रहनुमाई के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर पोलिंग स्टेशन लिस्टें आवेजा कर दी गई। 95% पोलिंग स्टेशन सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे। यूनियन काउंसिल के दफातर और मराकज़ सेहत में भी पोलिंग स्टेशन बनेंगे। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से इंतजामिया की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं, तो दूसरी जानिब ज़िला भर के 9 रिटर्निंग अफसरान जो हैं उनके दफातर के बाहर जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी लिस्टें भी आवेजा कर दी गई हैं। रिटर्निंग अफसरान का ये कहना है कि वोटर्स और उम्मीदवारों की रहनुमाई और आसानी के लिए ये लिस्टें जो है वो रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर आवेजा की गई हैं। तहाँ मजमूई तौर पर टोबा टेक्सिंग ज़िला में 1228 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे इंतखाबात के मौका पर। इसके साथ साथ जो है वो जिनमें मर्द जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 343 है। खवातीन जो वोटर्स हैं उनके लिए मजमूई तौर पर 344 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और जो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होंगी उनकी तादाद 542 है। इसके साथ साथ टोबा टेक्सिंग में आम इंतखाबात के मौका पर मजमूई तौर पर इन पोलिंग स्टेशन में 3881 पोलिंग बूथ भी कायम किए जाएंगे, जहां पर वोटर अपना हक राय इस्तेमाल कर सकेंगे। टोबा टेक्सिंग में मजमूई तौर पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 15,76,072 के करीब बताई जा रही है। तमाम रिटर्निंग अफसरान का ये कहना है कि वोटर्स के लिए मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद लारे सत्ता इंतजामिया मिली भगत हुकूमती अहकामात में हवा में उड़ा दिए।
हुकूमत सफाई की मद में जे कंपनी की फी मुलाजिम को 8 घंटे ड्यूटी की मद में 45,489 रुपये अदा कर रही है, जबकि जे कंपनी फी मुलाजिम 12 घंटे के 17,000 रुपये और 8 घंटे के 13,000 रुपये अदा कर रही है। इलाहाबाद अस्पताल में 359 जे कंपनी के मुलाजिम की सफाई की मद में माहाना लाखों रुपए के घपले किए जाने का इंकशाफ सिटी 41 ने इलाहाबाद अस्पताल और जे कंपनी के दरमियान होने वाले मुआहदे की कॉपी हासिल कर ली। इसी पर बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। बनाने के लिए हुकूमती हदायत पर इलाहाबाद फाल इंतजामिया की जानिब से जो ठेका है सफाई के वाले से वो जे कंपनी को दिया गया है, और ऐसे में हुकूमत की जानिब से जो मुआहिदा किया गया है जे कंपनी के साथ इलाहाबाद हॉस्पिटल इंतजामिया के साथ, उस मुआहिदे की जो कापी मौसूल हुई है उसमें यह कहा गया है कि फ़ी मुलाजिम जो तनख्वाह है वो 45,489 रुपये जो है वो हुकूमत की जानिब से जे कंपनी को फ़ी मुलाजिम की मद में अदा किए जाएंगे। मगर जब हमने यहाँ पे मुलाजमीन से बात की है जो कि मुआहिदे के तहत 359 मुलाजमीन जे कंपनी फराम करेगी और 359 मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो इलाहाबाद फाल इंतजामिया की जानिब से हुकूमत की जानिब से जो फराम की जाएगी। तो ऐसे में जो हमारी मुलाजमीन से गुफ्तगू हुई है तो मुलाजमीन का ये कहना है कि 12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, 17,000 और 18,000 रुपये जो तनख्वाह दी जा रही है, जबकि जो 8 घंटे काम करने वाले मुलाजमीन हैं जे कंपनी के, उनका ये कहना है कि 12,000 या 13,000 रुपये जो है वो तनख्वाह दी जा रही है। और इस तरह जो है मुबीना तौर पर लाखों रुपये के घपले जो हैं वो इस वक्त सफाई की मद में जो है वो की जा रही हैं। ताहम इस सिलसिले में जे कंपनी के जो मालिक हैं जो कि इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं जे कंपनी का, मियाँ जमशेद, हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि 4 छुट्टियाँ। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वासा में सिक्योरिटी के साथ साथ दीगर डेली वेजेस अमला भी प्राइवेट ठेकेदार के सपुर्द कर दिया गया। पहले मरहले में ड्राइवर और दफातर में मौजूद डेली वेजेस क्लरिकल स्टाफ की तनख्वाहें आइंदा प्राइवेट ठेकेदार अदा करेगा। CBA यूनियन ने फैसले की मुखालफत कर दी। कहते हैं वर्कर का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात करते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। अच्छा, बिल्कुल वासा फैसलाबाद में हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी अमला के साथ साथ दीगर मुलाजमीन को भी प्राइवेट ठेकेदार के सपुर्द करने का फैसला किया गया है, जिसके खिलाफ वासा CBA यूनियन की जानिब से न सिर्फ दरख्वास्त दी गई है बल्कि आने वाले दिनों में एहतजाज का इंदिया भी दिया गया है। तमाम तर वर्कर्स जो हैं, जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, उनको पहले वासा 32,000 माहाना के हिसाब से तनख्वाहें अदा कर रहा है, जबकि इसके साथ साथ प्राइवेट ठेकेदार की जानिब से 24,000 रुपये फ़ी का तनख्वाह जो है वो अदा की जाती है और वासा से वसूल की जाती है 32,000। हमारे साथ मौजूद होंगे अहदेदारान भी, इनसे भी पूछेंगे। एप्का की अगर बात कर ली जाए या इसके साथ साथ CBA यूनियन वासा की बात कर ली जाए तो तमाम ही अहदेदारान वासा के इस फैसले के खिलाफ हैं। कालू साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से ठेकेदार जो है वो मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करते हैं, क्या इसमें मुलाजमीन का नुकसान होता है या अदारे का फ़ायदा, क्या सीन है इसमें? जी शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी ये कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। असल में ये हमारे मुलाजमों के नहीं, अदारे का भी नुकसान है। जो ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार सिर्फ सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी का ठेकेदार है, उनको मुलाजमीन जो है उनके फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, नोटिफिकेशन मुताबिक जो है मिनिमम सैलरी जो है डेली वेजेस की वो 32,000 है, 36,000 32,000 जो है, लेकिन ये 32,000 रुपये उस ठेकेदार को दे रहे हैं, सिक्योरिटी वाले को। आगे से वो जो बंदे हमारे हायर कर, हमारे ही मुलाजम जो है ना, वो हायर करके उनको 24,000 रुपया दे रहा है। तो ये हम बिल्कुल अदारे का भी नुकसान है और मुलाजमीन का भी नुकसान है। 2-2 3-3 करोड़ की गाड़ी है, तो हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। हमने MD वासा साहब से बात की है, डायरेक्टर DMD साहब से बात की है इंशाल्लाह ताला, और वो उसने बहुत जल्द किया है, इतनी तेज़ी से। हमारे जो मुलाजम हैं, ख़ास तौर से जो हमारे ड्राइवर हैं, उनके अकाउंटों में, किसी के अकाउंट में 14,000, किसी के 15,000, किसी के 16,000 अकाउंटों में भी ट्रांसफ़र कर दिया उस ठेकेदार ने। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वासा में सिक्योरिटी के साथ दीगर डेली वेजेस अमला भी प्राइवेट ठेकेदार के सपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे हैं वासा में सिक्योरिटी के साथ दीगर डेली वेजेस अमला भी प्राइवेट ठेकेदार के सपुर्द कर दिया गया। आगे बढ़े, आपको बताया फैसलाबाद में नहरों की भल सफाई का सिलसिला जारी। 31 जनवरी तक भल सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। इस सिलसिले में टास्क सौंप दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अरसा दराज के बाद मुकम्मल तौर पर भल सफाई का इनेकाद किया गया। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर में बल सफाई का काम शुरू हो गया। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ नहरों में जो है वो दर्जाबंदी के हिसाब से बल सफाई की जा रही है। महकमा नहर की जानब से बताया गया है कि इस सिलसिले में पूरा प्लान मुरतब किया गया है कि यहाँ पर 31 जनवरी तक तमाम तर काम मुकम्मल किया जाएगा। और इस सिलसिले में यहाँ पर जो इस नहर पर मैं खड़ा हूँ, ये 13 जनवरी को इसकी नहर जो है बंदी होगी
उसके बाद इस पर 31 जनवरी तक काम शुरू होगा। कुछ नहरें जिनका 1 जनवरी का काम बंद हो चुका है, यहाँ पर वो तमाम जो है वो 15 जनवरी तक काम मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ नहरों में मुख्तलिफ जो टाइम है उसके हिसाब से बल सफाई का इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम यहाँ पर जो मादा जमा हो जाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ पौधे जमा हो जाते हैं, बाल जमा हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है। इसकी वजह से पानी के बहाव में रुकावट बनती है और बहुत सारा पानी जो है वो टेल पर एंड तक पहुँच नहीं पाता, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्शन लेते हुए पंजाब भर में यहाँ पर बल सफाई की हिदायत की गई है। वादे रहे कि यहाँ पर तकरीबन 20 सालों के बाद ये बल सफाई मुकम्मल तौर पर करने जा रहे हैं। इससे पहले मुशर्रफ दौर में एक बार बल सफाई का मुकम्मल तौर पर इनेकाद किया गया था पंजाब भर में, जिस पर पानी के हवाले से कई साल जो है वो सुकून का सामना जिम्मेदारों को रहा, लेकिन फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता फिर बालू और मिट्टी जमा होती गई, इस तरह से पौधे जमा होते गए जो कि मुसलसल पानी के बहाव में रुकावट बनते और पानी जो है वो एंड तक पहुंच नहीं पाता। टेल वाले जो हमेशा वो पानी के हवाले से शिकायत करते हैं या जहां पर पानी की चोरी होती है वहां पर भी ये मसला होता है। तो अब ये तमाम लोगों के हवाले से एक बड़ी खबर होगी, अच्छी खबर होगी कि 31 जनवरी तक जो बल का काम है साफ कर लिया जाएगा, मिट्टी साफ कर ली जाएगी और उससे बाद जो पानी का बहाव है वो बेहतर हो सकेगा। जी अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बिजली मजीद महंगी, किसान तहफुजात का शिकार, ट्यूबवेल बिल लाखों में आ रहे हैं, महंगाई ने बदहाल कर दिया। किसान बोर्ड ने बिजली की कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दिया, एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। बात करेंगे इसी हवाले से अवैस खान से। जी अवैस बताइए। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जो है पहले से ही जो माली बोझ का शिकार काश्तकार जो है मजीद जो है माली दबाव का शिकार हो गया है। इस सूरत हाल पर किसान बोर्ड की जानिब से शदीद तहफुजात का इजहार किया गया है। मेरे साथ किसान बोर्ड के जिले सरपरस्त आला जो है फरीद मकियाना मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, बिजली की कीमतों में जो है मुतवातिर इजाफे का सिलसिला जारी है, किसानों की जानिब से एहतजाज भी किया गया लेकिन वो भी लाहासिल नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कि 4 रुपए यकदम यूनिट के अंदर इजाफा कर दिया गया है। किसान बेचारा जो है वो पहले बदहाल है, उसको खादें बर वक्त नहीं मिली और जो फसलें हैं उनकी जो है वो औसत बड़ी कम है। धान का वो मारा हुआ, उसकी कीमतें भी गिरी और उसकी फसल भी कम हुई। अब जो गन्ना है उसका वजन भी कम है और ऊपर से ये आए दिन गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं रही कि ये बेचारे की पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई है, उसकी आमदन तो है कोई नहीं, ये अगली फसल कैसे काश्त कर पाएगा, ना ये खाद दे पाए हैं। हम इंशाअल्लाह किसान बोर्ड की सतह पे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि ये बिजली की ये जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं ये फौरी तौर पे वापस ली जाए और सस्ती बिजली फराहम की जाए ताकि पानी का मसला किसान के लिए हल हो और किसान अपनी फसलों की बढ़ोतरी की वजह से अगली फसलें काश्त करे और पाकिस्तान की मईशत को भी संभाला दे। कहना है कि यकीनी तौर पर किसान बोर्ड की जानिब से फैसले को मुस्तरद किया गया है और इस हवाले से जो है वो मुल्की सतह पर एहतजाज की कॉल भी दी जाएगी। किसान जो है वो भरपूर तरीके से जो है इस फैसले के खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे और हुकूमत को मुतालबा किया जा रहा है कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए, फैसले को वापस लिया जाए ताकि किसानों को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नेटवेयर शोबा कोशिश के बावजूद बेहतरीन ना दिखा सका। माली साल के निस्फ तक मुनाफा बख्श शोबा 40% खसारे में चला गया। एक्सपोर्टर्स ने मौसर पॉलिसी साजिश की मुतालबा कर दिया। बात करेंगे इसी हवाले से बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान की बरामदात में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखने वाले नेटवर्क डिपार्टमेंट है, जो इस वक्त बरामदात के अंदर जो है गुज़िश्ता साल के अंदर देखें तो 30% से ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार नजर आया, जो कि गुज़िश्ता साल के अंदर 30% से ज़्यादा इजाफे में था। 11% डिक्लाइन, कुल मिलाकर ये 45% से ज़्यादा डिक्लाइन शो हो रहा है। जबकि इसके साथ एक पुराना दरीना मुतालबा DLTL का, जिस हवाले से अब कुछ अच्छी चीज़ ये है कि पेशरफ्त नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूदा चेयरमैन और साबका चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरूक भाई, क्या कहेंगे कि DLTL के हवाले से कुछ चीज़ें आई हैं? सेल टैक्स अभी रिफंड्स बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स देखें, क्योंकि अब साल का आखिर हो चुका है, तो उसमें कुछ अच्छी रिपोर्ट नज़र नहीं आ रही। जो हमारे मौजूदा कॉमर्स मिनिस्टर हैं
تو ان سے ہمیں آج تک تو کوئی اچھی خبر نہیں ملی، اور جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے ہمیں ایک دفعہ بھی انوائٹ ہی نہیں کیا کہ وہ ہماری بات سنیں، ہماری مشکلات سنیں۔ انہوں نے حل تو دور کی بات ہے، حالانکہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میں 100 بلین پہ لے جاؤں گا تو میں اتنے بلین کر دوں گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ہی اچھی نیوز تھی کہ وہ DLTL جو ہے نا وہ ہمارا ریلیز کر دیں گے، تو اللہ کرے کہ وہ یہی ایک کام کر دیں تاکہ جو ہمارا ورکنگ کیپٹل کا پرابلم ہے وہ ہمارا سالو ہو جائے گا۔ کاشف بھائی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے کس حد تک بڑی لیکوڈیٹی کرنچ کا سامنا ہے، اس سے کوئی ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیں، اعجاز گوہر صاحب سے ایک ہی سوال ہے کہ جب گورنمنٹ پچھلی جو چل رہی تھی اس میں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے تھے کہ ایکسپورٹرز کے ریفنڈز کو جاری کیا جائے، جبکہ گوہر اعجاز صاحب آئے ہیں کتنے ریفنڈز انہوں نے جاری کروائے ہیں یا کیے ہیں؟ ایک نعرہ آیا ہے، اللہ کرے وہ وفا کریں اور آنے والے وقتوں میں ہمیں جو ہے ہمارے پیسے مل سکیں۔ ایکسپورٹر بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔